مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ دلچسپ خبروں کے ساتھ تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں، ادارے کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، ایران سے تعلق رکھنے والے افشین اسماعیل غدیر زادہ کو دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی قرار دے دیا گیا ہے۔ صوبہ مغربی آذربائیجان کی بوکان کاؤنٹی کے گاؤں میں پیدا ہونے والے افشین اسماعیل کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان کا قد 65.24 سینٹی میٹر ناپا گیا ہے، جبکہ ان کا وزن صرف 6 کلو گرام ہے۔ ان سے قبل دنیا کے سب سے چھوٹے آدمی کا اعزاز جنوبی امریکی ملک کولمبیا سے تعلق رکھنے والے ایڈورڈ نینو ہرنینڈز کے پاس تھا۔ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حکام کی جانب سے افشین اسماعیل غدیر زادہ کو دبئی کے میڈیا سٹی کے ایک ہوٹل میں منعقدہ تقریب کے دوران دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا گیا۔ تقریب کے دوران گفتگو کرتے افشین کا ماننا تھا کہ وہ منفرد اعزاز حاصل کرنے پر انتہائی خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ایک جادو کی طرح ہے، آپ اگلی صبح اٹھے پتہ چلے کہ آپ پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ افشین کی والدہ نے بتایا کہ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ان کا وزن صرف 700 گرام تھا۔ بعد ازاں ان کی نشو و نما بھی سست رہی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر مایوس ہوئے، لیکن بعد میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے انہیں بیٹا عطا کیا۔ ناظرین گرامی، جرائم کی دنیا سے کس قدر خطرناک خبریں آتی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ مغربی بنگال کے نادیا ضلع کے نودیپ میں ماں نے لاٹری ٹکٹ سے 75 لاکھ روپے جیت لیے، لیکن پیسے کے لالچ نے بیٹے کو اس قدر شیطان بنا دیا کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے مل کر کے اپنی ماں کا ہی قتل کر دیا۔ نودیپ تھانے کی پولیس افسر سپریا ساہا کے قتل کے معاملے خاتون سمیت 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں کنال ہلدار، نین ملاکر اور شکلا بسوا شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکلا اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ پولیس کے مطابق سپریا کو قتل کرنے کے بعد گرفتار کیے گئے ملزمین میں سے کنال نے ایک بار اپنی مقتولہ کے فون میں سم ڈال کر کے استعمال کیا تھا۔ اسی ذرائع کی بنیاد پر پولیس کو کامیابی ملی۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایک لاٹری میں ملنے والے پیسے نے بیٹے کو لالچی، اس کی معشوق کو لالچی بنایا اور بیٹے کو ماں کا قاتل ہی بنا دیا۔ ناظرین، اتر پردیش میں یوگی حکومت کی پولیس ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ جو پولیس عوام کو تحفظ اور اعتماد فراہم کرنے کا حلف لیتی ہے، وہی پولیس اتر پردیش میں عوام پر منمانی کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ تازہ معاملہ کانپور کا ہے، جہاں ایک تاجر کی پولیس حراست میں موت ہو چکی تھی، جس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی۔ اس معاملے میں پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اور معاملے سے متعلق یسمو جی انچارج پرشانت گوتم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتر پردیش کی انسانی حقوق کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور اب تک 11 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا جا چکا ہے، نکالا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی محکمہ پولیس نے مفرور پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے 6 ٹیمیں بھی تشکیل دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 12 دسمبر کو شیولی پولیس نے بلونت سنگھ نامی شخص کو ڈکیتی کی شبہ میں گرفتار کیا، اسے تھانے لے گئی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے گرفتار کیے گئے بلونت کو حراست میں اس قدر مارا پیٹا جس کے بعد اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس کی تصویر وغیرہ وائرل ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد سے اب اس سلسلے میں پولیس اہلکاروں کو پوری طرح سے نکال باہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بی جے پی لیڈر کی ظلم و ستم کی کہانی بھی سامنے آئی ہے اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اتر پردیش کے فرخ آباد سے انسانیت کو شرمسار کرنے والا وہ ویڈیو تھا۔ یہاں کے ایک گیسٹ ہاؤس میں شادی کی تقریب میں یومیہ اجرت پر ویٹر کے طور پر کام کرنے آئے 5 نوجوانوں کو موبائل چوری کی شبہ میں 12 گھنٹے تک زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا گیا تھا۔ یہی نہیں، زنجیروں میں تالے بھی لگائے گئے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا۔ دراصل کمال گنج کے گیسٹ ہاؤس میں شہر میں رہنے والے ایک ویٹر کا ٹھیکیدار شادی کی تقریب میں ویٹروں کو وہاں لے گیا تھا۔ شادی کی اس تقریب میں
कोल्ड स्टोर के मालिक और बीजेपी युवा व्यापार मंडल के जिला सदस्य नितेश महेश्वरी भी अपने खानदान के साथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि वेटर ने उन्हें खाना खिलाया, उसके बाद ट्रिप वगैरह लेकर वहां सफाई कर दी, जबकि गोल्ड स्टोर का मालिक फैमिली के साथ वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आया और कहा कि उसकी बीवी का मोबाइल यहाँ चोरी हुआ है। वेटरों से पूछा, लेकिन वेटर ने मोबाइल फोन के पास होने से इनकार किया। इस पर पांचों वेटरों को गाड़ी से कोल्ड स्टोरेज ले गए और पांचों वेटरों के पैरों में जंजीरें बांध करके उन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। तो नाज़रीन गिरामी, मामूली से चोरी का शक करके किस तरह से जो है मजदूरों को और मुलाजिमों को इस बीजेपी लीडर ने जो हरासा किया है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और तेलुगु देशम पार्टी के हामियों के दरमियान तशद्दुद तसादुम हुआ है। दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान झड़प जुम्मा की देर रात पलनाडु जिले के मचरेला इलाके में हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ पर पथराव, तोड़फोड़, आतिशज़नी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, जिसके चलते जो है कई गाड़ियों को आग लगा दी। दोनों जमातों के लोगों ने और कारकुनान ने पुरतशद्दुद तसादुम में कई अफराद जख्मी भी हुए। रात के हंगामा आराई को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो है YSRCP और तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनान में अक्सर जो है मुठभेड़ देखने को मिलती है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है अक्सर जो है जख्मी और इस तरह के मामला सामने आते रहते हैं। ये दो हामियों के दरमियान कोई सियासी लड़ाई नहीं बल्कि मुतासिबाना हमले उस इलाके में गुज़श्ता 20 से 30 सालों से जारी है, ये भी कहा जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब MIA के सिलसिले में जो वाक़या हमारे इंटरव्यू का हिस्सा था वो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखने जा रहा हूँ। MIA हमारे नौजवानों के लिए, सनअतकारों के लिए जो बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं, सनअतकारी से जुड़ना चाहते हैं, बेंगलुरु के इस तंजीम की जानिब से उनके लिए बेहतरीन मौक़े फराहम किए जाते हैं और उनसे फ़वाइद भी उठाए जाते हैं। इसीलिए एक समिट मुनक़िद होने जा रही है इस वक्त जनवरी के महीने में, लिहाजा आप नौजवान जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो सनअतकारी में और जो है एक अपनी तरफ से कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या दूसरों को रोज़गारी देना चाहते हैं। तमाम लोगों को आइडिया भी मिल सकते हैं और इस समिट में जो है मुख्तलिफ लोग, बड़े बड़े लोग जो 14 और 15 जनवरी को मुनक़िद होने वाला है उसमें जो है शामिल होने वाले हैं। बहुत सारी स्टॉल्स भी आने वाले हैं। इसकी तफसीलात खुद जो है इसी तंजीम से जुड़े हुए मुख्तलिफ अहदेदारान ने पेश की है। आप इसको देखें, फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी, सीधी बात की इस रूबरू प्रोग्राम में हम आपसे उन लोगों की रूबरू कराते हैं जो बाकायदा मिल्लत और कौम के लिए खिदमत करते हैं। उसमें से एक अहम तरीन तंजीम का हमारी पहली किस्म में तबसरा हो चुका है MIA का, जो बेंगलुरु की एक अहम तरीन तंजीम है जो अपने एतबार से पैरों पर खड़ा करने के लिए खिदमत करती है, अपना कमाया हुआ पैसा और अपनी मेहनत की पूंजी इसमें लगाती है और कौम के नौजवानों को उठ खड़ा होने की जो है तक़वियत देती है। इस सिलसिले में इसी का प्रोग्राम इस वक्त मुनक़िद होने वाला है बिज़नेस समिट 2023 का, यानी कि अगले साल तो इख्तिताम को पहुंच चुका है, वैसे भी 2022। इस सिलसिले में हम कुछ मालूमात हासिल करने के लिए इन्हीं के टीम से, इन्हीं के तंजीम से वाबस्ता कुछ अहम तरीन शख्सियात हमारे इस वक्त स्टूडियो में हाजिर हैं। सबसे पहले मेरे दाएँ जानिब जो बैठे हुए हैं जनाब तनवीर अहमद साहब और जनाब SS अफसर कादरी साहब और अब्दुल रशीद साहब, ये तीनों अहम तरीन शख्सियात हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमसे गुफ्तगू करेंगे। अलग अलग वहदों पर फाइज हैं इस तंजीम से। मैं सबसे पहले SS कादरी साहब जो मेरे बगल में बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब तक जो है इस तरह की जो बिज़नेस समिट होती हैं कितनी मुनक़िद हुए हैं, इसका मकसद क्या था और जो 2023 को मुनक़िद होने जा रहा है इसका मकसद क्या है? देखिए, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से छोटे और बड़े कई ऐसे समिट्स हुए हैं, बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए हैं, इवेंट्स भी हुए हैं, नेटवर्किंग मीटिंग्स भी हुए हैं। असल मकसद जो मुस्लिम MIA का क़ायम होने का यह है कि हमारे कौम के जो नौजवान जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आना चाहते हैं, दे वांट टू वेंचर इनटू दी ओन बिजनेस एज सच, उनको किस तरह से हैंड होल्डिंग किया जाए और किस तरह से उनको एक कंप्लीट तो जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी होती है। बहुत सारे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं उनको मालूम है कि कौन से यहाँ पर
ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट कंप्लीट जर्नी डन ऑन देयर ओन। तो MIA जो है वो एक लिंक है जहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप को एक वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है, जहाँ पर उनको हैंड होल्डिंग हो, मेंटरिंग हो, और किस तरह से इंडस्ट्री का जो कायम करने के लिए कौन से डिपार्टमेंट से उन्हें कनेक्टिविटी चाहिए या फिर गवर्नमेंट से फंडिंग भी हो, ये तमाम चीज़ों को जमा करके जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वन ऑफ दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIA जो है उसको कायम करने के लिए ये समिट्स हम हमेशा रखते हैं। अच्छा। तो आगे आने वाला जो बिजनेस समिट 2023 जो 14th और 15th 2 दिन का जो है, इसमें ये है कि तकरीबन 250 से ज़्यादा मेंबर्स जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज, अपने खुसूसी जो सर्विसेज रहेंगे उसको डिस्प्ले करेंगे। वी हैव मोर देन 200 to 300 स्टॉल्स विच आर अवेलेबल, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है वहाँ पर। तो ये तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, दे आर गोइंग टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ गोइंग टू एनकरेज द अदर पीपल ऑल्सो आइदर टू गेट इन टू सिमिलर इंडस्ट्रीज और ऑल्सो टू कनेक्ट विद दैम। कनेक्टिविटी जो है ना ये कायम होगी। और इसके अलावा भी जो है 2 दिन के समिट में हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होंगे, वहाँ पर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, द पीपल हु आर अथॉरिटीज़ इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वो जो है वहाँ पर स्पीचेस देंगे, अपने अपने ख़यालात और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं उनको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। Okay, they will be able to get inspired, they will be able to get expertise, all this thing. तो बेसिकली ये समिट का मकसद ही ये है कि हमारे जो कौम के आने वाले जो नौजवान हैं, those who have completed their education, those who are wanting to establish, or those who have already established but they want to grow to a larger level, एक लेवल से ऊपर के लेवल को लेकर जाने में जो है MIA का हाथ रहेगा। और इसी मकसद के साथ में जो है इस समिट को कायम किया गया है। जनाब अब्दुल रशीद साहब, इसमें समिट में इस वक्त बहुत सारे स्टॉल्स जैसे बताए मोर देन 200 and 300 आ रहे हैं मुल्क के। क्या सतह के होते हैं? क्या ये लोग अपने हाथ से बनाए हुए मैन्युफैक्चर होते हैं या मार्केट से ला के इस तरह रख सकते हैं? क्या है ये सारी चीज़? नहीं, ये खुद बनाए हुए मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, और इसके अलावा ट्रेडर्स का भी जो है जो एजेंसी हैं जिनके पास जो इंडस्ट्रियल कनेक्टेड है जो भी है, उनको भी हम स्टॉल्स दे रहे हैं। सब इवन है ना, हम नॉन मुस्लिम्स को भी दे रहे हैं इसमें। अच्छा। स्टॉल्स तो वो लेके आके उनका जो भी कंपोनेंट है उसे है ना डिस्प्ले करें। अब 300 स्टॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें माशाल्लाह जो है हमारे पास लेडीज़ भी हैं, जो 80 औरतें हैं जो मेंबरशिप लेके हैं। उसमें थोड़े जो है केक बनाने में स्पेशलिस्ट हैं, और थोड़े ट्रैवल एजेंसीज में भी हैं, और है ना कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, और बहुत सारे लेडीज़ भी हैं। इनके लिए भी हम एक एनकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि जो है वो भी एक हमारे एक अम्ब्रेला में आ जाएं। और जो नौजवान हैं इनके लिए ख़ास कर है ना ये एग्ज़िबिशन को आके है ना देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो है अब हमारे पास जो है माशाल्लाह जो है एक पिन से लेके जो है एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट तक हमारे पास जो है मैन्युफैक्चरर होते हैं। हमारी जो मेंबरशिप में जो आदमी जो है हम मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में, सब ये जो है हर तरफ से प्रेस कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, सब में हर चीज़ में है। जो इतने डिफ़िकल्ट कंपोनेंट्स हैं, जो प्रिसिशंस हैं, वो जो है हमारे पीडिया में बनते हैं, हमारे मेंबर्स के पास जमते हैं, वो बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। अल्लाह के फजल से जो ये 19 साल से जो है आ रहा है, इसके लिए अब हम जो है 14-15 तारीख को जो है एक सीमित जो करने वाले हैं जो है ना, ये जो है एक मकसद का है हमारा, जो है हमारी कौम को एक बेदारी ले लेकर है, ताकि जो है हम लोग भी हैं यहाँ तक जो है ये मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं, और है ना दूसरे वो आने वाले नौजवान भी जो है इसमें है ना ये कुछ कर सकते हैं। एक इनके लिए एक एनकरेजमेंट है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना इसमें स्टॉल में है ना पार्टिसिपेट करें, और उसके अलावा जो है आके एग्जीबिशन 2 दिन का एग्जीबिशन है उसमें है ना देखें इसे कुछ तजुर्बा हासिल कर लें। तो जनाब तनवीर अहमद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आपके समिट के सिलसिले में? जी अस्सलाम वालेकुम। Since this business summit is coming up in 14th and 15th of January in Singar Palace, that has been bifurcated into 2 segments. One is conference, one is exhibition.
What is conference about? Conference is for the people who want to, scale up their business to the next level. We have different type of, people, leaders coming up with most priority there. You can learn how they have scaled up their business, so that you can come and enhance your business. There is a second part, which is an exhibition. See, the objective why this business summit started. We want our MIA members, 500 members, to come in a single platform for us to understand who are doing what business and how we can help each other to grow up our business. The second objective is how a Bangalore or a Karnataka or pan-India people come and see all the businesses what MIA members are doing, how they can collaborate with that, how they can scale up their business, how they can give their franchisee to us or we can give franchisee to them. These are the second objective. The third objective of this conference is the student who is coming after the final year has to take entrepreneurship as their career, not a professional life. Alhamdulillah, there are one more option is the professional who is already doing good things in their professional life has to take entrepreneurship as an option also. These are the objectives of this. One more important thing is the collaboration. In this small thing, what happens, pan-India collaboration, where a woman entrepreneur can, send all her items to any other places pan-India. This can happen only in a single platform, which is, Business Summit, inshallah, on 14th and 15th of January, Singhar Palace, Bangalore. नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो हमारे जनाब तनवीर अहमद साहब ने भी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की अंग्रेज़ी में, ताकि वो नौजवान जो अंग्रेज़ी तबका है उन तक भी बात पहुंच सके। असल में समझा रहे थे कि जो है क्यों आपको यहाँ पर आना है, आपका आने से क्या फ़ायदा होगा, आप इस समिट से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोगों से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, आप किसी सनअतकारी के इदारे से जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह बनाते हैं, आपको इस इदारे से क्या ताउन मिल सकता है और आपकी वजह से इदारा किस कदर मजबूत हो सकता है। एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे की चीज़ें अगर हम लोग समझेंगे और इस समिट में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि जो समिट इस वक्त मुनक़िद होगा 2023 का, हमारी इस MIA की जानिब से वो कामयाब होगा। और छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप बनाने की हिम्मत है, बना सकते हैं, आपके जहन में कोई बात है, कुछ आइडिया है, शेयर कर सकते हैं, ज़रूर यहाँ पर जाइए। चूँकि ये लोग जो है अपनी पूंजी लगा के लोगों के ताउन के लिए बैठे हैं। भारत में से बहुत ही मुख्तस हाथों पर गिने, उंगलियों पर गिने जाने वाली तंजीमें होते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसमें लगा करके अपनी कौम के दीगर लोगों को, जिनके अंदर सलाहियतें हैं, सोचने की सलाहियतें हैं, परखने की सलाहियतें हैं, कुछ करने का जज्बा है, उन लोगों के लिए फील्ड मुहैया करते हैं। इस तरह के समिट से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और ये देखा भी गया है और गुज़श्ता 18 साल से इस मैदान में काम भी कर रहे हैं। हम आपकी पूरी टीम का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये सीधी बात कोशिश करता है कि जो लोग कौम और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और अपना वक्त और अपना धन दे करके कि उनको आप लोगों के सामने रूबरू लाएँ, ताकि उनका इहाता बढ़े, उनका दायरा वसी हो और उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग भी ज़्यादा हो जाए। मुझे और हमारी इस वक्त जो मेज़बान और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, जनाब SS अफसर कादरी साहब हैं, जनाब अब्दुल रशीद साहब हैं, जनाब तनवीर साहब हैं, तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।